डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सबसे पहले यहाँ पे देखो हेटेरो मतलब क्या होता है। हेटेरो, सो दिस हेटेरो मतलब अदर देन, इसके अलावा, अदर देन कार्बन इन एनी साइकिल। इट मे बी 3 मेंबर, इट मे बी 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, मे बी एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे कि हमने 6 3 मेंबर लिया तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एन इपॉक्साइड कंपाउंड, ऑक्सीटेन, ऑक्सीरेन। नाइट्रोजन लेते हैं तो वहाँ पे हम 5 मेंबर वाला, 4 मेंबर वाला बता सकते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन कंपाउंड है, उसमें अजीटिडोन कंपाउंड है। सो दिस टाइप्स ऑफ द कंपाउंड वी कॉल, दिस इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइकल्स। ओके, दिस इज नोन एज अजीटिडिनोन। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक कंपाउंड जो है, जैसे कि 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो है हमारा, इसका नाम है फ्यूरॉन। 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो है हमारा THF, this is called as THF, this is known as furan. So this furan is called as what? 5 member heterocyclic compound. This is THF, tetrahydrofuran. It acts as a solvent in any number of organic reactions. So this is a furan. Furan, how to explain the furan? The furan is explained oxygen containing 5 member heterocyclic compound. ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद में हम 5 मेंबर वाला बता सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। द वेल नोन नेम ऑफ दिस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इज कॉल्ड द पायरॉन। दिस इज कॉल्ड द पायरॉन। दिस नाइट्रोजन हैविंग द सेकेंडरी अमाइंस, the secondary amines which contain the lone pair of electrons. We can show this how the resonances takes place in the pyrrole molecules. तो दूसरा यहाँ पे एग्जांपल हम बता सकते हैं, अगेन व्हाट, सल्फर कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड एज थायोफिन। व्हाट इज द नेम? थायोफिन। तो ये जो 3 या 4 एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे हम उसके, यहाँ पे THF है, ये फ्यूरॉन है, उसके बाद में पायरॉल है और ये थायोफिन है। सो दिस थायोफिन अगेन सल्फर कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, 5 मेंबर सल्फर कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, दिस इज नोन एज व्हाट? थायोफिन, फ्यूरॉन, pyrrole. So these are called as what? 5 member heterocycles. Again, we can show 6 member heterocyclic compound. This is called as what? Pyridine. These nitrogen atoms which are the outside of this nitrogen, this group is show this electron withdrawing group because of the electron withdrawing effect, because of nitrogen having the pi bond. तो यहाँ पे pi bond है, pi electrons है, इसका जब रेजोनेंस करते हैं तो रेजोनेंस कैसा होगा? देखो बच्चा लोग, इसका रेजोनेंस, so this nitrogen act as electron, so this lone pair of electrons which attack the electron towards the nitrogen atoms and it create the positive charge and nitrogen create the negative charge. So again what, this pi bond is shifted to here. Again we show this is a resonating structure. How the resonance is takes place in what? Nitrogen containing 6 member heterocycle. This is a pi bond, this one is pi bond, this positive charge here and this nitrogen having the negative charge. Again this pi bond shifted toward the positive charge. This is nothing but resonance, we call this resonating structure. So this is what, again negative charge donate to this positive charge toward the positive charge and we will get another structure of resonance, have you can say resonating structure. Nitrogens here pi bond and here is pi bond. So the position of the pi bond is changes from this position. How many structures is get? 1, 2, 3 and 4. So we call this is what? A resonance or is a resonating structure. How many structure? 1, second, this one is third and this one is what? Fifth. So here is particular three structures are represented. This is a resonating structure. So in this molecule दिस इज अ 2 पोजिशन। तो यहाँ पे हम पोजीशन बताने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, ये पोजीशन है, यहाँ पे 1 नंबर है, ये 2 नंबर वाला, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6 नंबर। यहाँ पे जो नंबर 2 पोजीशन है, देखो नंबर 2 पोजीशन और नंबर कितना 4 पोजीशन, इस 2 पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर और यहाँ पे 6 पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे फील्डिंग की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कौन से पोजीशन पे आ रहा है? देखो 2 पोजीशन, उसके बाद 4 पोजीशन और 6 पोजीशन। सो दिस पोजीशन हैविंग व्हाट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन पुअर इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। देखो
जो हम वेल नोन एक रिएक्शन है pyridine का. So pyridine is react with the NaNH2 or KNH2, then formation of 2 amino pyridine. Such types of the reaction is called as what? Chichi-Babin reaction. कौन सा? Chichi-Babin reaction. So in this case, what? At the 2, 4 and 6 position, it creates the positive charge. It means that it is a lower or lowest electron density. It electron poor, electron deficient. That's why the nucleophilic, as you call this nucleophilic reaction, is takes place at what? 2, 4 and 6 position. तो यहाँ पे याद रखना है. और इलेक्ट्रोफिलिक की बात करते हैं यहाँ पर कि pyridine molecule electrophilic substitution and nucleophilic substitution. It's very important. ESR reaction is takes place at on which position and nucleophilic reaction is takes place on which position. तो यहाँ पे pyridine के रिएक्शन हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो कहाँ पे होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? यहाँ पे होता है यस 3 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे. If the 3 position is a block, then again the electrophilic substitution reaction is carried out again what? On which position? At 1, 2, 3, 4 and 5 position. So electrophilic substitution is takes place at 3 and 5 position, while nucleophilic reaction, as we call this nucleophilic substitution reaction, is takes place at what? On 2 position. If the 2 position is blocked, then again we can go toward what? Next position, that is how? Which position? Again what? 4 position. Again the 4 position is a block, then nucleophilic reaction is carried out at what? 6 position. So it's very important part. The pyridine having what? Which contain the tertiary amines, having the electron withdrawing group effect. This it show having the electron withdrawing group, and it shows what? Which types of the effect. This is what a इंडक्टिव इफेक्ट. इट मीन दैट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. तो याद रखना है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जो मॉलिक्यूल हमने डिस्कस किया यहाँ पे pyridine वाला. तो कौन सा मॉलिक्यूल है? देखो ये 6 मेंबर हेट्रोसाइकिल है. उसके बाद यहाँ पे ये फ्यूज हेट्रोसाइकिल है, इसका नाम है क्यूनोलिन. यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे तो 5 और 8 पोजीशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. और अलावा 5 और 8 पोजीशन अलावा अदर देन 5 और 8 पोजीशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा. इसका नाम है बेटा क्यूनोलिन, इसका नाम है pyridine. एंड व्हाट अनदर एग्जांपल वी कैन शो. दिस इज व्हाट isoquinoline. So these two molecules having what? Quinoline and isoquinoline, which having the iso sigma bond compound is containing what? The same sigma bond containing compound as well as same pi bond containing compound. Also same lone pair of electron containing. मतलब यहाँ पे lone pair of electron एक है, pi bond यहाँ पे 5 है और sigma bond यहाँ पे 19 sigma bond है. इसमें भी 19 sigma bond है. मतलब ये iso sigma bonded है, iso pi bonded है, iso lone pair है. इसका नाम है बेटा isoquinoline. क्या नाम है? isoquinoline. क्यूनोलिन, isoquinoline. तो ये तीनों भी मॉलिक्यूल यहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? -I इफेक्ट शो करते हैं. कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे रेजोनेंस देखा, कैसा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं? देखो बेटा यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा. सेम थिंग इन व्हाट? क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनोलिन मॉलिक्यूल. जैसे कि pyridine में हो रहा है वैसे क्यूनोलिन में भी होगा और आइसोक्यूनोलिन में होगा. याद रखना है ये टर्शियरी कंटेनिंग मतलब टर्शियरी अमाइन इन हेट्रोसाइकिल, चाहे वो 5 मेंबर हो, 6 मेंबर हो या फ्यूज हेट्रोसाइकिल हो. फ्यूज हेट्रोसाइकिल की बात करते हैं क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनोलिन. ये दो एग्जांपल फ्यूज हेट्रोसाइकिल है. pyridine, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन. इट शोज -I इंडक्टिव इफेक्ट. याद रखना बेटा इंडक्टिव इफेक्ट इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. आगे का जो कंसेप्ट जो हम वीडियो बनाने वाले हैं इसके ऊपर ही होगा. तो याद रखना है ये जो 3 कंपाउंड हमने यहाँ पे लिखे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा है बेटा? यस, नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर वाला pyridine, फ्यूज हेट्रोसाइकिल क्यूनोलिन,
फ्यूज हेटेरोसाइकिल आइसोक्विनोलिन, इसका नंबर देने का भी जो स्टाइल होता है बेटा, यहाँ पे याद रखना है, नंबरिंग यहाँ पे इसका ऐसा होता है 5, 6, 7 और यहाँ पे 8 और ये 9 वाला और ये 10 वाला, इसका नंबरिंग है थोड़ा सा जैसे कि हम बायसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखते हैं वैसा यहाँ पे इसका नंबरिंग देने का स्टाइल होता है। ओके बेटा, आगे जाता है, यहाँ पे देखना है बेटा, अगेन अनदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि one of the fused heterocycle, so this is a pyridine, sorry, benzene molecule and this one is a 5 member, so what is the name, this is called as इंडोल मॉलिक्यूल, इसका नाम है बेटा इंडोल। तो इंडोल को हम एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखना है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और सेकेंडरी अमाइन है, इसका रोल ऑलमोस्ट सेम होता है, इसका नाम हमने बताया, ये पायरॉल वाला 5 मेंबर है लेकिन ये पायरॉल प्लस बेंजीन मतलब फ्यूज हेटेरोसाइकिल है 6 मेंबर एंड 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो याद रखना है ये कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। अब याद करो बेटा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है, फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्री की बात मैं कब करूंगा, क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन और pyridine की बात मैं करूंगा तो वो फ्री नहीं है, वो नाइट्रोजन, वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के आउटसाइड में है, मतलब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बच्चा। कौन करता है, उसका पाई बॉन्ड करता है, किसका पाई बॉन्ड, देखो बेटा जैसे कि हमने यहाँ पे किया, ये पाई इलेक्ट्रॉन अपनी इलेक्ट्रॉन मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग नाइट्रोजन, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, सो दैट्स व्हाई वी शो द माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, गॉट इट, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर वैसी बात नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेकंड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, कहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा बच्चा लोग, देखो ये मॉलिक्यूल ऐसा मैंने लिखा, देखो बेटा ये हिस्सा है और ये वाला सेकेंडरी अमाइन लिखा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आया और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, जहां से गया वहां पर पॉजिटिव, जिसकी ओर गया वो नेगेटिव, ये कंसेप्ट हमें पता है, बेसिक है, जिसकी ओर जाएगा वो नेगेटिव बनेगा, जहां से जाएगा वो पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पे खेल देखो क्या हो रहा है, ये कौन सा आइटम है, ये कौन से टाइप्स का नंबर है, यहाँ पे हम नंबर देते हैं बच्चा लोग, कैसा कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड है, ये ऐसा NH है और यहाँ पे नंबरिंग हमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा नंबरिंग इंपॉर्टेंट है बच्चा, यहाँ पे देखना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग कैसा आ रहा है, यहाँ पे एक नंबर, ये 2 वाला, 3 वाला, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 8 और ये वाला 9 नंबर। अब देखना है ये वाला कौन सा आइटम है, ये 3 पोजीशन वाला है, अब ये 2 और 3, तो मुझे बताना है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका कैसा हुआ बेटा, ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है तो यहाँ पर मुझे बताना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या न्यूक्लियोफिलिक होगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ से ये मोस्ट फेवरेबल कौन से पोजीशन पे है बेटा, एट 3 पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे कि हमें पता है बेटा, फॉर्मुलेशन रिएक्शन कौन सा फॉर्मुलेशन है, याद करो यहाँ पे रिमर-टीमन नाम का रिएक्शन, बहुत प्यारा रिएक्शन है ना, रिमर-टीमन जो हम फिनॉल के साथ करते हैं, है ना, रिमर-टीमन वाला जो हम फिनॉल के साथ करते हैं, कौन सा बच्चा लोग, रिमर-टीमन वाला बोलो, फिनॉल के साथ करते हैं, क्या यूज करते हैं, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलता है सर, ऐसा देखो ना बच्चा लोग, है ना, जैसे कि वहाँ पे फिनॉल का सैलिसिलाइड बनता है ना, वैसे यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा, ये क्या नाम है इसका, बोलो बच्चा लोग, इसका नाम आएगा आपका यस 3-फॉर्मिल इंडोल, 3-फॉर्मिल इंडोल। ओके, और ऐसे बहुत सारे रिएजेंट है जो कि फॉर्मिल बनाते हैं, इसका नाम हमने क्या बताया अभी रिमर-टीमन वाला, है ना, वैसे है गटरमन वाला, गटरमन कोच वाला, गटरमन कोच, उसके बाद में विल्समर-हैग, देखो बेटा विल्समर-हैग बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पता है आपको क्या यूज किया जाता है, POCl3 प्लस DMF। ओके सर, आपको कैसे याद है ये, हाँ इसका नाम है बेटा विल्समर-हैग रिएक्शन,
ये भी यही प्रोडक्ट बनाता है बच्चा लोग। गटरमन, गटरमन कोच, विस्मर हाइट, रिमर डिमर, है ना, हाउगन हाउस, कोलबेज, ये ऐसे जो रिएक्शन है तो कहाँ पे होते हैं बच्चा लोग, यहाँ पे 3 पोजीशन पे होते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक कहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 पोजीशन पे होगा, न्यूक्लियोफिलिक 2 पोजीशन पे होगा, इलेक्ट्रोफिलिक 3 पोजीशन पे होगा। अब इसका भी रेजोनेंस कर सकते हैं। अब मुझे बताना है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो कौन सा इफेक्ट बताएगा बच्चा, प्लस आ इफेक्ट बताएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बताए ना कौन सा इफेक्ट बताता है। तो यहाँ पर हम ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायराल वाला, बोलो, एंडल वाला, पायरल वाला, एंडोल वाला, पिपरिडिन वाला, पापा पे पीपा, पिरिडिन वाला, हाँ कौन सा वाला, पिपरिडिन वाला। अरे सर ये पिपरिडिन वाला कैसा है, ऐसा 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 होता है पिपरिडिन, देखो ऐसा होता है। और ये इंडोल तो बताया हमें, है ना, पायरल भी बताया। ये कौन सा इफेक्ट बता रहा है बच्चा लोग, ये कौन सा इफेक्ट बता रहा है, प्लस आ इफेक्ट बता रहा है। वही तो है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है इंडक्टिव इफेक्ट इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोला मैंने, इंडक्टिव इफेक्ट इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब हेटेरोसाइक्लिक अलग अलग कंपाउंड रहेंगे, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है। प्लस आ इफेक्ट और माइनस आ इफेक्ट हम तो जनरल देखते थे, जो OH ग्रुप है, मिथॉक्सी है ना, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, मेथिल होगा, एथिल होगा, साइनाइड होगा, आयोडीन होगा, एसिड होगा, नाइट्रो होगा, ईस्टर होगा, ये जो सारे फंक्शनल ग्रुप है, इसको हमने जस्टिफाई किया था, एक प्लस आई वाला और एक माइनस आई वाला, है ना, जिसमें पाई बॉन्डिंग कंटेंट है, पाई बॉन्ड कंटेंट है, तो वहां पे क्या है, वो इंडक्टिव कौन सा बताता है, प्लस आई या माइनस आई, पाई बॉन्ड वाला माइनस आई बताता है। वेरी गुड, पॉजिटिव वाला माइनस आई बताता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, वो प्लस आई इफेक्ट बताता है। लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट इन हेटेरोसाइकल, क्या बात, तो इंडक्टिव इफेक्ट इन हेटेरोसाइकल। चलो सर अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं, देरी काय को, अच्छे काम के लिए देरी नहीं। चलो प्लस आई इफेक्ट वाला और माइनस आई इफेक्ट वाला, सर आगे से क्वेश्चन बना के रखा है, क्या बात, बहुत बढ़िया। Which nitrogen containing heterocyclic compound shows positive and negative inductive effect? अब ये क्वेश्चन आएगा, इसको देखने के लिए आपको अगला वीडियो लेक्चर देखना है, तो तब तक मैं आपको 1 मिनट में इसको खत्म करता हूँ। क्या है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, ये देखने के बाद वो देखना पड़ेगा, वो मत देखो, पहला ये देखो, फिर वो समझ में आएगा। ओके, प्लस आई इफेक्ट हमने अभी अभी बोला था, कौन से कंपाउंड है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट वाले, बोलो। देखो एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, यहाँ पे कौन से इफेक्ट है माइनस आई वाले, पहला होगा हमारा फिनोलिन, पिरिडिन, आइसोक्यूनोलिन, पिरिडिन वाला, पिपरिडिन, पिरिमिडिन, ऐसा भी है, इसमें भी टर्शियम माने पिरिमिडिन वाला, है ना। ओके, प्लस इफेक्ट वाला, पायरॉल वाला। सर नाइट्रोजन की बात करेंगे हम, सिर्फ नाइट्रोजन की, यहाँ पे नाइट्रोजन की बात हो रही है ना। पायरॉल वाला, पिपरिडिन वाला और इंडोल वाला। तो याद रखो, ये जो है ना, ये कौन से अमाइन में आ रहे हैं बच्चा लोग, सेकेंडरी अमाइन, और ये सारे के सारे टर्शियरी अमाइन। तो दिस इज व्हाट, तो ये था हमारा पार्ट, यहाँ तक का ये पहला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर उस वीडियो में। तब तक ओके बाय।